ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ੌਲਕ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ। ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ। ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ। तकरीबन 1 साल बाद किते हुण जाके चंडीगढ़ तो शाहजहां दे लई पहली फ्लाइट जा रही सी, लेकिन एयरपोर्ट ते इस वेले खूब हंगामा हो गया। बड़ी दूर दूर तो नौजवान टूरिस्ट वीज़ा ते वर्क वीज़ा लैके शाहजहां दे लई पहुंच रहे सी ते नौजवान दिल्ली, पानीपत ਅਤੇ पंजाब ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, लेकिन अचानक ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 45 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। हमारे 10 डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं, एक भी काम बोलेंगे जाओ जी आपके लिए भेज सकते हैं, ठीक है सर। हमारे उन्होंने अलग-अलग चेक भी नहीं किए और हमारे जो आपके जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे वो हमें ये बोल रहे हैं हमें पता है आप लोग विजिट वीज़ा लेकर जा रहे हो, काम करोगे सर। अमृतसर से जाओ, कहीं से भी जाओ, मुझे पता है इमिग्रेशन ऑफिसर के क्वेश्चन होते हैं वो पूछते हैं, हमें क्लियर करने होते हैं, पर्सनली पूछते हैं। उन्होंने हमें लाइन में खड़ा कर दिया जैसे हम लोग चंदा मांगने वाले बारी बारी आएंगे, लाइन में खड़ा कर दिया। बोल रहे हैं पहले कौन गया है हाथ खड़े करो, कर दिया। कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, किसी ने बोला मेरा भाई है, भाई का नाम बताओ। मैंने बोला मेरा दोस्त है, भाई मेरा दोस्त है, मैंने बोला मैं जाऊँगी। वो बोली ठीक है आपसे सबको अंदर आ जाओ। ये बात क्या है, सबके पास डॉक्यूमेंट है, सबके पास वीज़ा है, आप सबको चेक करो। मैडम वही बता रहा हूँ, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईबी पर्सनल बातें नहीं हो सकती, ये वर्डिंग तो ये हद नहीं होता। वो किसी का एक्टिविस्ट में थोड़ी करेंगे। कोई नहीं मैडम, अभी आगे का सॉल्यूशन हम देखते हैं। आगे का जो लिस्ट हमने दी हुई है, यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें सॉल्यूशन एट द एंड पता नहीं चलेगा कि होगा क्या। मैडम यहाँ पे खड़े होकर नहीं रुकेगा, इन्होंने ईमेल करी हुई है, बॉम्बे से आना है, यहाँ से इनके लेवल पे जो होना सर अगर ईमेल भेजे तो आप क्यों आए हो? आप यहाँ पे खड़े आपसे बात करने के लिए आए हैं, हम नहीं जाएंगे सर, के लिए आए हैं। हमें रीजन बताइए, प्रॉपर रीजन, वैलिड रीजन दो, कोई रीजन दीजिए वैलिड। ਸਾਡਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 45% ਜੋ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਕੁਝ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਿਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ। ਉਹੀ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। इसका काम है डॉक्यूमेंट चेक करना, सही है तो भेज दो, नहीं है तो वापस भेज दो। ये शक्ल लेके जज नहीं कर सकते। नीचे पॉलिसी की और यहाँ लोग खड़े होकर हाथ जोड़ रहे थे। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। एक्चुअली मैंने 2-3 दिन पहले ही टीवी चैनल इंडिया टीवी पे देखा था कि एक एडवर्टीज़मेंट आ रही थी। डॉलर कंपनी है जिसके बनियान अंडरवियर वगैरह की एडवर्टीज़मेंट थी। उसमें अक्षय कुमार जब कंक्लूड होती है एडवर्टीज़मेंट तो उसमें बहुत ही एक भद्दी भाषा जिसे मैं कह सकते हैं, जिसमें बोलना भी शायद ठीक नहीं समझता, उसका प्रयोग करते हैं। ऐसी भाषा जो फैमिली के साथ बैठकर हम सुन भी नहीं सकते। और यदि कोई आपकी बच्ची पूछ ले कि ये क्या कहा है अक्षय कुमार ने अपने एडवर्टीज़मेंट में आखिरी शब्दों में, तो वो मेरे ख्याल में कोई भी बाप अपना सिर झुका लेगा, शर्म से बता नहीं पाएगा। तो मैंने इस एडवर्टीज़मेंट का ये जब भद्दापन देखा तो मैंने एक कंप्लेंट फाइल की है पंजाब स्टेट विमेन कमीशन के पास। उसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है वो कमीशन देखेगा। लेकिन दूसरी कंप्लेंट मैंने एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के ऊपर एडवर्टीज़मेंट जो होती है उसको रेगुलेट करती है। एक सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज़्म है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीज़मेंट नहीं दी जा सकती, ना ही कोई इनडिसेंट एडवर्टीज़मेंट दी जा सकती है। ये जो एडवर्टीज़मेंट है इनडिसेंट डेफिनेटली है। इसमें डबल मीनिंग वाले डायलॉग यूज़ किए गए हैं जो किसी भी, मैं समझता हूँ, औरत के सामने यदि बोले जाएं तो ये बहुत ही बेशर्मी की बात होगी। तो मैंने उन्हें भी यही बेनती की है कि आप कृपा करके इस एडवर्टीज़मेंट को रिमूव करवाइए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। और बाई ईमेल मैंने उनको ये भेज दी है। यदि सर केस दर्ज होता है तो किन किन धाराओं के ऊपर केस दर्ज हो सकता है? धाराएं तो आईपीसी में कई हैं जिसमें है कि कोई भी आप ऑब्सीन या वल्गर चीज़ नहीं कर सकते पब्लिकली, तो ये पब्लिकली वल्गर चीज़ करने वाली बात है। ऐसी धाराएं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी होती हैं, तो इसके ऊपर केस तो चल ही सकता है। लेकिन मैं केस की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये एडवर्टीज़मेंट रिमूव होनी चाहिए तुरंत। केस तो चलते रहते हैं, केस चलने से एडवर्टाइजमेंट जल्दी रिमूव नहीं होती, ये तुरंत रिमूव होनी चाहिए, मेरी यही मांग है। यदि रिमूव नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मेरा हाई कोर्ट में जाना होगा यदि रिमूव नहीं करते। मैं 2 हफ्ते वेट करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। यदि नहीं रिमूव करते तो हाई कोर्ट में जाऊँगा। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ के इनको हदायत की जाए कि इस एडवर्टीज़मेंट को रिमूव कराएं। ਵਕੀਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੂਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ नहीं हुए ने ते जो भ्रष्टाचार होया है उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। शनिवार परसों 25 तारीख को नगर निगम की बैठक है और चंडीगढ़ कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है कि हम भाजपा शासित नगर निगम की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो पिछले 4.5 साल से लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा करते आ रहा है नगर निगम, चाहे वो पानी के रेट्स का मामला हो, गार्बेज कलेक्टर्स का मामला हो, लॉन्च कंपनी में भ्रष्टाचार किया हो, ड्राइवरों की भर्ती में पैसे, सफाई कर्मचारियों की भर्ती में पैसे, डंपिंग ग्राउंड के मामले में आग कैसे लगती है, लगाई जाती है, इन सब की बातों को लेकर और भी कई मुद्दे हैं, कर्मचारियों के मुद्दे हैं। हम मांग करते आ रहे हैं कि जो अस्थाई कर्मचारी हैं उनको पक्का अभी तक क्यों नहीं किया, जेम पोर्टल जो है उसके अंदर कितना घपला हो रहा है, एक एक एम्प्लॉई से उनको रखने के लिए 1-1 महीने की तनख्वाह वो मांगी जा रही है। ये बातें सारी जिस पे अभी हम एक पूरा डिटेल में एक जारी करेंगे, इसको लेकर हम एक विशाल प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बहुत सी मीटिंग्स 2-3 दिन में हमने की हैं और भी आज चल रही हैं, लेकिन मैं वीडियो के द्वारा आप सबसे जो मीटिंग में या किसी और कारणवश आपस में उनका संपर्क हमारा नहीं हो पाया, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि चुनाव से पहले शायद ये एक बड़ा प्रदर्शन होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अक्टूबर के महीने में शायद ड्रॉ वगैरह निकल जाएंगे, सीटों का पता लग जाएगा। बहुत से कार्यकर्ता सभी पार्टियों के अपने अपने वार्डों में जाके वहाँ काम करना शुरू कर देंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये प्रदर्शन हमारा अभूतपूर्व होना चाहिए और आप जहाँ भी हैं, जिस वार्ड में हैं, शहर के, कॉलोनी के, गांव के, जिस भी एरिया में आप रहते हैं, आज और कल हमारे पास 2 दिन हैं, आपने अभी से अपना संपर्क शुरू कर दें। जो जो चीज़ आपको पार्टी फ्लैग्स या ब्लैक फ्लैग्स वगैरह आपको चाहिए वो आप पार्टी दफ्तर से मेरे से आकर ले सकते हैं, लेकिन इनसे सबसे ज़्यादा जो बड़ा काम है वो है कि हम भारी से भारी संख्या में वहाँ पर पहुँचें और भारतीय जनता पार्टी को दिखाएं कि अब चंडीगढ़ की जनता जो है आपकी इन नीतियों से उब चुकी है, अब समय आ गया है। और हम तो शायद ये मांग करेंगे कि अगर जो 3 महीने रहते हैं ये भी अब भाजपा को नहीं देने चाहिए, इसको भंग कर देना चाहिए, वरना 3 महीने में भी ये लूट के खा जाएंगे। जो आजकल इनकी नीतियाँ चल रही हैं कि अब काम धंधे की तरफ इनका ध्यान नहीं है कि गाँव का कोई विकास करना है या शहर का विकास करना है। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ 29 MGD ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। देखिए, चंडीगढ़ में जब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आई है, आप तब का और पिछले 15 साल में जिसका पार्टी का कॉरपोरेशन के ऊपर कब्जा था वो उनका 15 साल बनाम हमारे 6 साल का आप इतिहास उठा लीजिए। आप RTI के माध्यम से भी ले सकते हैं। उन्होंने क्या विकास करा, उनसे पूछिए कि 15 साल का एक काम बताइए जो शहरवासियों को लिया आपने करा हो, नहीं तो हम बताते हैं कि 6 साल में हमने क्या डेवलपमेंट करे हैं।
29 MJD पानी, जो इतना मुश्किल काम था शहर में लाने के लिए, और चंडीगढ़ में पानी की कमी थी, वो अगर हुआ है, वो दो सरकारों के बीच में एक MOU साइन करके आज वो चंडीगढ़ को पानी मिल रहा है, तो सिर्फ भाजपा की सोच थी और भाजपा ने करवाया है। ये लोग सिर्फ मुद्दा बनाना जानते हैं और लोगों के काम करने के लिए इनके पास कोई विज़न नहीं है। आप सदन में भी देखते होंगे, ये लोग सिर्फ शोर शराबा हो हल्ला करते हैं। कोई एक इनसे पूछिए कि आप शहर के विकास के लिए, लोगों की भलाई के लिए एक काम जो सदन में लेके आएँ वो बताएं। शहर की जनता जानती है, लोग जानते हैं कि कौन काम कर रहा है और कौन यहाँ पे राजनीति कर रहा है। तो मुझे बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मगर शहरवासी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सारे वो जानते हैं। और भाजपा ने जितना विकास पिछले 6 सालों में करा, शायद इतिहास में, कॉरपोरेशन के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और इस साल भी आप देखते होंगे कि जितने काम पेंडिंग थे, हमारे पूर्व महापौरों ने जितने काम शुरू करे थे, आज सारे के सारे हमने वो पूर्ण कर दिए। एकमात्र डड्डू माजरा गार्बेज प्लांट का जो काम है, उसका भी DPR जो है हमने अभी IIT जो रोपड़ है वो बना के इसी महीने दे देंगे। उम्मीद है कि सदन की बैठक में लाके अगले महीने टेंडर कर देंगे, उस काम की भी अलॉटमेंट कर देंगे। उसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं है शहर में जो पेंडिंग है। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਹਾਰਟ, ਕਿਡਨੀ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਘਟਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। महंगी होने का कारण इसके हमारी जिम्मेवार हमारी गवर्नमेंट ही है, मैं तो यही कहूँगा सीधे साफ और साफ लफ्ज़ों में। नंबर 1, ज़्यादातर रॉ मटेरियल बाहर से आते हैं, बाहर की कंट्रीज से हमारी सरकार को, हमारी गवर्नमेंट ऑफ जो फैक्ट्रीज़ हैं इंडिया की, उनको बाहर से लेने पड़ रहे हैं। उनकी वजह ये अभी जैसे फ़्लाइट्स कैंसिल हैं कोविड की वजह से, वो टाइम पे नहीं माल आ रहा। दूसरी बात, उन्होंने भी बाहर की कंट्रीज़ ने ब्लैक मेलिंग शुरू कर दी कि अपने रॉ मटेरियल के रेट बढ़ा दिए बहुत ज़्यादा। उनको माल इरेगुलर हो गया, उस रॉ मटेरियल आना जाना। और दूसरी बात, अगर हम इतने सालों से बाहर के कंट्रीज़ पे ही बेसिक सॉल्ट के लिए डिपेंडेंट हैं, क्यों? हमारे मोदी जी कहते हैं सुई से लेकर जहाज़ तक हमने यहाँ बनाना शुरू कर दिया। क्या बेसिक ड्रग यहाँ डेवलप नहीं हो सकती? हो सकती है। क्या उसको यहाँ पैदा करके वो और सस्ती भी पड़ेगी और हमें इजीली अवेलेबल भी होगी? कई बार जैसे तो कुछ दवाइयों की शॉर्टेज होती है, वो ना हो। ये दिस इज़ द रीज़न। देखो, असल में बात है कुछ लोग गुमराह हुए हैं। काफ़ी रॉ मटेरियल हमारा जो भारत दवाई प्रोड्यूस करता है उसका चाइना से आता था, क्योंकि चाइना से आपको पता है संबंध कुछ ऐसे कुछ हुए थे, तो उसके कारण हमारा जो सामान का आना जाना था वो कम हो गया है। तो उससे रॉ मटेरियल्स के रेट मार्केट में बढ़ गए थे, इंडिजिनस मार्केट में, भारतीय मार्केट में उसके रेट बढ़ गए थे। उसके कारण जो हर दवाई नहीं हम कह सकते, कुछ दवाइयाँ जैसे शुगर की हैं, कुछ हार्ट की हैं, जिनकी डिपेंडेंसी बाहर के सॉल्ट्स पे ज़्यादा थी, कैंसर की हैं, उन पे कुछ हमारा जो है किसी तरह का पूर्ति नहीं हो सकी, उसके कारण रेट बढ़े हैं। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖਰਾਬ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਹਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਅਫਗਾਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਤੜਤੜਾਹਟ ਨੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਜਾਇਕਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੋਵੇਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਅੰਜੀਰ, ਪਿਸਤਾ, ਬਾਦਾਮ, ਬਲੈਕ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼, ਖੁਰਮਾਨੀ ਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਰਜੀਰਾ ਉੱਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਛਾਲ ਆਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ वाले हर एक ड्राई फ्रूट की कीमत ज्यादा बढ़ गई है। सर ऐसा है, ड्राई फ्रूट के रेट में बादाम, काजू, अखरोट गिरी, मतलब टोटल कुल मिला के सारे ड्राई फ्रूट में इजाफा हुआ है। 30 से 40% का इजाफा हुआ है सर। क्या कारण मानते हैं? कारण सर कुछ तो ये है कि अफगानिस्तान और तालिबान की लड़ाई का हिस्सा है, कुछ पीछे से माल कम आ रहेगा, तो उस वजह से कुछ ये भी है जो बड़े बड़े ऊंचे लेवल पर स्टॉकिस्ट हैं, जैसे दिल्ली में हो गए या बड़े बड़े होलसेलर हो गए, कुछ उन्होंने स्टॉक कर लिया सर और मनमानी के रेट ले रहे हैं इस टाइम। जैसे बादाम गिरी लगा लो, पहले आज से पहले 1.5-2 महीने पहले 530-540 का रेट था और आज वही बादाम गिरी रेट मार्केट में बिक रही है 900 रुपये, 850-900 रुपये बिक रही है। कस्टमर को रेट बोलो 900 रुपये, कस्टमर कहता है कि बहुत महंगा है, कस्टमर का रेट मांगो उसी टाइम से कस्टमर छोड़ देता है। पिस्ता का क्या रेट? पिस्ता भी पिस्ता सर जो पहले रेट था 900 रुपये किलो था पिस्ता, और आज की डेट में वही पिस्ता 1100 रुपये किलो है, यानी कि लगाओ से आप 200 रुपये किलो बढ़ गया। मुख्य वजह आप तो ही मानते हैं? मुख्य वजह सर ये तो है, तो स्टॉकिस्ट है जो बड़े बड़े ऊंचे लेवल पर होलसेलर है, उन्होंने स्टॉक कर लिया है। दूसरा लड़ाई का आएगा, मनमाने रेट चल रहे हैं सब, जिसके पास जो पड़ा है उन्होंने रेट से बेच रहा है, मार्केट के अंदर वही माल आ रहा है। आपको लगता है दिवाली पे डाउन आएंगे? बहुत मुश्किल है सर, लगता नहीं है अभी, ये आप कह नहीं सकते कि दिवाली तक कोई स्टॉक रेट कम हो सकता है। ड्राई फ्रूट महंगा होने का कारण एक तो अफ़गानिस्तान से जो पीछे ये तालिबान की अफ़गानिस्तान की जो लड़ाई चली है, वहाँ से माल के बहुत कह रहे सुनने में आ रहे भी बहुत कम आ रहेगा, उसकी वजह से रेट इंक्रीज ज़्यादा हो गए हैं। पहले जो हमारे यहाँ पर बादाम गिरी थी वो 540-530 रुपये आती थी, तो मार्केट में हम लोग उसको 580 वगैरह बेच देते थे। अब आज बादाम गिरी का रेट ही 800-850 रुपये है, क्या रेट बेचे। अब ग्राहक को ये पैक्ड है, हम पहले इसका वही बात है 150 रुपये बताते थे रेट, आज 250 बताना पड़ रहा है, तो ग्राहक उसी टाइम छोड़ देता है। तो जिस हिसाब से फेस्टिवल आ रहा है दिवाली का, उस हिसाब से तो मार्केट में सेल बहुत कम रहेगी। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। रुख तापमान का कर लेने तो बीते 2 दिन तो मीह के करके मौसम सुहावना हो गया सी, पर फिर अज धुप देखने को मिली, जिस तो बाद हुण तापमान देखा जाए तो तापमान है जिहड़ा वध तो वध 35.0 डिग्री सैल्सियस से घट्टो घट्ट तापमान 22.2 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। नमी 57% रही। तो अज दे इस बुलेटिन दे विच बस इन्ना ही, फिर होवेगी मुलाकात। सत श्री अकाल।